भाइयों एवं बहनों, लगता है डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट अमेरिका ग्रेट अगेन के वादे को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise and we will rebuild the nation that we all love so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. We will never give in. We will never give up. We will never back down, and we will never, ever, ever, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. And together, we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. भले ही वो अमेरिका के लिए बेहद ही हानिकारक रहा हो और बेहद ही खतरनाक हो रहा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वार हो जिसमें आपने भली भांति समझा है कि अमेरिका को किस तरीके से कितना नुकसान पहुंचा है, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर में चलकर वो ट्रेड वार खत्म ही हो गया। क्या कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बेहद ही कमजोर फैसला था जो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो वहीं एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के युद्ध को लेकर बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की। आप सबने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स और हमारे न्यूज चैनलों पर उनके हर एक ट्वीट को पढ़ा होगा। इस समय खबरों में ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े फैसले लेते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर को लेकर अपनी जिम्मेदारियां लोगों के सामने रख रहे हैं कि हम और अमेरिका किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। It's happening. It's been a very strong week and a very strong weekend. Before we begin, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. हालांकि कुछ दिनों बाद भारत सरकार की तरफ से ये दावों को पूरी तरीके से गलत ठहरा दिया गया। भारत सरकार का कहना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे डीजीएमओ को फोन किया गया और उनसे बात की गई और उसके बाद दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हुए। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. पर अमेरिका के पूर्व सेना अधिकारी माइकल रूबिन ने भारत सरकार के फैसले को लेकर और भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बात कही है जो ट्रंप के दावे को ही झूठा ठहराता है। उन्होंने कहा है कि भारत इस लड़ाई में एक निर्णायक जीत जीता है और साथ में ही उन्होंने पाकिस्तान को दुम दबाकर भागने वाला कुत्ता तक बता दिया। सुनिए ये बयान। There are two elements to the US reaction that we need to differentiate. What the United States actually did versus what President Donald Trump said. The two are not necessarily synonymous. Certainly, whenever Pakistan and India come into conflict, the United States tries to mediate behind the scenes. And this is reasonable because the United States is trying diplomatically to provide an off-ramp
to prevent unrestricted warfare, and also, in a worst case scenario, prevent an escalation to any sort of nuclear exchange. So the fact that the United States would be in touch with both New Delhi and Islamabad. इस समय डोनाल्ड ट्रंप दुबई के दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर भी पाकिस्तान और भारत के सीज फायर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने और भी ऐसी बातें की हैं जो शायद ही लगता है कि आने वाले समय में पूरे होंगे या फिर धराशायी हो जाएंगे ट्रंप के इसी बयान के तहत। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very... उन्होंने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हम सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने का आदेश देते हैं ताकि सीरिया एक बार फिर से महान बन सके। देखिए उनका ये बयान। Has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. जो अमेरिका आतंकियों की खात्मा करने की बात करता है, जो अमेरिका ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकियों को मौत के घाट उतार चुका है, डोनाल्ड ट्रंप आज उसी अमेरिका की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुबई दौरे पर गए डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सरा से हाथ मिलाया और इतना ही नहीं, उनको दोस्ती की तरह गले भी लगाया, जो बताता है कि पैसों के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी यानी कि कुछ भी। और ये मुलाकात अमेरिका के दोहरे चरित्र को भी दर्शाता है। दरअसल बात यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सरा एक आतंकी है, जिसे खुद अमेरिका ने 16 मई 2013 को आतंकी घोषित किया था, यानी कि आतंकियों की लिस्ट में इनका नाम डाल दिया था। अमेरिका ने इसे 5 साल तक अपनी जेल के अंदर बंद करके रखा था। ये खतरनाक हायत तहरीर अलसै आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। जुड़ा ही नहीं, ये काफी दिनों तक इन संगठन के साथ एक्टिव रहा और काफी नुकसान पहुंचाया। सीरिया में ये आतंक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया हुआ था। अमेरिका ने इसे पकड़ने के लिए $10 बिलियन का इनाम भी रखा था, लेकिन आज उसी अमेरिका ने इसे हाथ मिलाकर गले लगाकर अपनी औकात दिखा दी कि हमारी औकात क्या है। तो दोस्तों, आज ये आप समझ सकते हैं कि अमेरिका पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है, और आज वो अमेरिका इसी आतंकी को गले लगा रहा है। ये अमेरिका के मानसिकता को पूरी तरीके से दर्शाता है कि अमेरिका दुनिया के लिए और भारत के लिए किस प्रकार की सोच रखता है और कैसी रवैया रखता है। आपको बता दूं कि ये वही अमेरिका है जो अभी कुछ दिन पहले नापाक पाकिस्तान को $1 बिलियन की सौगात दी थी, जो कि पाकिस्तान उसका प्रयोग आतंकी संगठनों को खतरनाक हथियारों से लैस करने और भारत के ऊपर आतंकी हमलों में लगाता है। ये अमेरिका को मालूम है, लेकिन अमेरिका फिर भी सब कुछ जानते हुए पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के कार्यकारी बोर्ड ने शुक्रवार को पाकिस्तान के साथ अपने $7 बिलियन के कार्यक्रम की पहली समीक्षा को मंजूरी दे दी है। यानी पाकिस्तान को IMF ने एक बार फिर से लोन दे दिया है, जिसमें $1 बिलियन की नकदी मुक्त हो गई है। यानी कि IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को दे दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले में बयान भी जारी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन की किश्त की मंजूरी पर संतोष जो है। ऐसा अमेरिका ने इसलिए किया ताकि पाकिस्तान चीन से हथियार ना लेकर अमेरिका से हथियार खरीदे, और अमेरिका अपने व्यवसाय के लिए किसी हद तक गिरते हुए दिख रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में पहुंच गए। उसके बाद ये हवाला दिया गया कि भारत की तरफ से जो हमला किया गया उससे पाकिस्तान के अंदर परमाणु रिएक्टर लीक हो रहे हैं, जिसकी जांच के लिए अमेरिका अपने रक्षा मंत्री और कुछ विशेषज्ञों के साथ पाकिस्तान में भेजा है। इन्हें पहले पाकिस्तान को ये समझाना था कि भारत से पंगा ना ले, नहीं तो उसका अंजाम यही होता है। आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर से ललकारते हुए
पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर बड़ी बात कही है, जो आपको जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है, वो भी उस समय में जब खतरनाक युद्ध चल रहे हों और किसी भी वक्त कोई भी देश किसी भी तरीके से अपनी चाल चल सकता है। उन्होंने कहा कि आज हम श्रीनगर की इस धरती से पूरी दुनिया से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आतंकी पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियार को IAEA के हाथों में सौंप देना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निगरानी में ले लिया जाना चाहिए। ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। तो आप लोग इस पे क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।